Hello. So we will start with the next topic in the arithmetic progression. See, suppose I have some problem. It is given the sequence 5, 8, 11 and like this. Okay. So next is what it is 14, 17. Some sequence is given like this and they have asked to find out the 100th term. Okay, 100th term of the sequence. Okay, 100th term of the sequence. What we need to find out the 100th term of the sequence. See, we know that what is the first term. A is the first term, which is 5. Next term is what? So we can call this as T1 also. Okay, then T2 is what? It is 8. Okay, T3 is what? It is 11. Like that way, what is the common difference here? The common difference is T2 minus T1, which will be 3. Again 11 minus 8, which will be 3. 14, so it will be 3. Okay, then T4 will be 17. Okay, then T5 will be what? We have to add 3. So we'll get 17 plus 3 is 20. Okay, so we'll get like this. Okay, we will get the sequence like this. But we need to find out the 100th term. Okay, what we have to do? We have to find out the 100th term of this sequence. Okay, so it is a tedious job, right? Now we need to go on writing and we need to find out the 100th term of this sequence. So how to do this one then? See, I know we know one formula, that is suppose T1 is equal to A. Then how we are calculating T2? T2 is what? It is actually T1 plus D. Okay, so which will be A plus D. Okay, T3 is what? T3 will be T2 plus D. Okay, then it will become T2 is what? A plus D plus D. Okay, so we'll get A plus 2D. If we go on with this formula, see here T3 and we will get here 2. Okay, right now T3, what we are doing, we are finding out the third term. Okay, but here we are multiplying the difference with 2 times. Okay, because A is the first term already. Then if we go like this, what will be the Tn term? It will be A plus, right, n minus 1. N minus 1 into D. Right now when 3 is there, here 2 is there. N is there, then here it is n minus 1 into 2. Okay, so you remember this formula. So many problems we will get depending on this formula. See, in this formula, see, one problem is what? They will ask you to find out Tn. Okay, means just like in this problem they have asked you to find out the 100th term. Okay, okay, so this will be the first type of problem. In some problem they will ask you to find out the A. Okay, this will be the second type of problem. Okay, in some problem they will ask you it is which term. Suppose 17 is given, so 17 is the which term of this AP. Okay, then this will be the third type of problem. And then they may ask D, what is the common difference? They will given Tn, that 17 is the it is 1 2 3 4 fifth term. Okay, they will given sequence. Okay, so you know this one. Okay, fifth term means n equal to, you will get 5. Okay, so and what we need to find out at that time? We need to find out D. Okay, तो हमें D फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके, सो ये कौन से टाइप का प्रॉब्लम रहेगा? दिस विल बी द फोर्थ टाइप ऑफ प्रॉब्लम, राइट? सो मतलब डिपेंडिंग ऑन दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के आधार पर हमें कितने टाइप के प्रॉब्लम्स मिल सकता है? 4 टाइप के प्रॉब्लम्स बन सकते हैं. ओके, और एक नया प्रॉब्लम रहता है कि मतलब यहाँ पे कुछ दिया रहेगा, जस्ट लाइक सपोज दे विल गिव यू, suppose they will ask you check whether 61 is in the sequence or not. Okay, मतलब 61 जैसे 17 बन रहा है, 20 बन रहा है, 61 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये पूछेंगे. वो एक फिफ्थ टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है. मतलब डिपेंडिंग ऑन अ सिंगल फॉर्मूला देयर विल बी अ 5 type of problems can be formed. Okay, that's why I told you this is the easy chapter, because only 2-3 concepts will be there, only 2-3 formula will be there, and the chapter will be revolving about these formulas only. Okay, so what तो हम सबसे पहले समझते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. तो उन्होंने क्या पूछा? व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट? वी नीड टू फाइंड आउट द 100th टर्म ऑफ द सीक्वेंस. हमें क्या फाइंड आउट करनी है? हमें 100 टर्म फाइंड आउट करना है सीक्वेंस का. ओके, सो यहाँ पे आएगा. ओके, सो माय फॉर्मूला इज व्हाट? Tn. तो हमें क्या मिलेगा? T100. ओके, A, what is A? 5 is A, and n is what? It is 100, right? 100 minus 1. Okay, and what is the common difference? Common difference is 3. Okay, so this will be the 3 will be the common difference. Okay, so what we'll get? It is 5. Okay,
Okay, then 100 minus 1 is what? It is 99 into 3. So what will get? You will get 5 plus 3 9 are 27. 7 2 3 9 are 27 and 2 is what? It is 29. If we add this one, we will get 302. Okay, so what will be the 100th term of this sequence? 100th term will be 302. Okay, right now see, if you go on writing, then it will be a very tedious job. Okay, so in spite of that one, हम एक फॉर्मूला यूज करके फट से द T100th वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, इसी डेटा पे एक और प्रॉब्लम दे हैव आस्क्ड चेक वेदर 61 इज इन दिस एपी. ओके, क्या है प्रॉब्लम? चेक वेदर 61 इज इन दिस एपी और नॉट. क्या बोला है? हमें चेक करना है कि 61 इस सीक्वेंस में, इस एपी में है या नहीं. तो कैसे चेक करेंगे हम? ओके, सेम फॉर्मूला वी नीड टू यूज. ओके, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ओके, तो अभी देखो क्या दिया है मुझे, वेदर 61 इज इन दिस एपी और नॉट. मतलब 61 क्या कोई टर्म है इसमें, है या नहीं, हमें चेक करनी है. तो ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? देखो, हमने पहले फर्स्ट टर्म फाइंड आउट की, राइट? हमने फर्स्ट टर्म फाइंड आउट की, हमने सेकंड टर्म फाइंड आउट की, थर्ड, फोर्थ, 5. मतलब हम कौन सी टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं? हम सिर्फ नेचुरल नंबर की ही टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट? क्या मैंने आपको बोला आप 3.5 टर्म फाइंड आउट करो? बोल सकते हैं क्या हम? अब तक हमने जितने भी प्रॉब्लम देखे, क्या उसमें आपने 6.5 टर्म या 7.2 टर्म फाइंड आउट की है क्या? नहीं की है. ओनली वी हैव फाइंड आउट द नेचुरल नंबर्स टर्म्स. ओके, so if we go like this one, so what will be the, if n will be a natural number मतलब 1 2 3 4 जो भी आएगा. ओके, सो अगर मिलता है then we can say that 61 will be in this AP. अगर नहीं आता है, अगर n will not be a natural number, okay, then it will not be in AP. okay, so अंडरस्टैंडिंग में लिख लेती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कैसे सॉल्व करने. तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि 61 AP में है या नहीं, मैं कैसे चेक करूँ. ओके, सो if I will write if n is natural number, right? If n is natural number, then that term will be in AP. then ये इस प्रॉब्लम के लिए, सबके लिए, ऐसे सारे प्रॉब्लम के लिए है. Okay, if n is a natural number, then that term will be in AP. Okay, if n is not natural number, then term is not in AP. okay, then that term will be not be in AP. okay, तो देखते हैं 61 whether 61 in this AP or not. okay, तो 61 को क्या लेना पड़ेगा? Tn लेना पड़ेगा क्योंकि 61 हमारी वन ऑफ द टर्म है. ओके, तो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं. सो 61 इज इक्वल टू a, अपना a क्या है? 5 प्लस हमें n ही फाइंड आउट करना है. सो आई विल राइट हियर n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस. कितना है कॉमन डिफरेंस? क्या है? 3. कॉमन डिफरेंस इज 3. ओके, सो इसको कैसे सॉल्व करूंगी? 61 माइनस 5, ओके, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3. ओके, 61 माइनस 5, 11 माइनस 5 इज व्हाट? 6. यू विल गेट 56. ओके, ये 3 मैं यहाँ पे डिवाइड करती हूँ, राइट ना? 56 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू n माइनस 1. तो ये क्या होगा? 56 डिवाइडेड बाय 3, ये माइनस 1 इस साइड आएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू n. सो यू विल गेट 59 बाय 3. ओके, इज 59 डिविजिबल बाय 3? नहीं, राइट ना? 9 plus 5 is 14. 14 is not divisible by 3. Therefore 59 is not divisible by 3. Okay. So since अभी क्या लिखना है? Since is 59 by 3 is a natural number. Since 59 by 3 is not a natural number. Okay. 59 by 3 is not a natural number. Therefore 61 is not in AP. Okay. 61 is not in AP. Therefore 61 AP में है क्या? नहीं है. You will get this type of problem also. Okay, this problem find out the 100 term. और इसके साथ कुछ तो भी पूछा जाता है, that question will be asked for 2 marks. Okay, so we will do the next problem. Okay, so इसके मैं सॉल्व भी आपको सारे प्रॉब्लम बताऊंगी और अनसॉल्व भी सारे प्रॉब्लम बताऊंगी. Okay, तो सिर्फ आपको अब तक एक ही ध्यान में रखना है कि हमने Tn फाइंड आउट किया,
व्हाट इज टी एन? टी एन विल बी इक्वल टू, टी एन का फॉर्मूला देखा हमने, टी एन इज व्हाट? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। ओके, सो विल सॉल्व विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी इज 560। ओके, प्रॉब्लम है सॉल्व में से है विच टर्म, ओके, विच टर्म ऑफ फॉलोइंग एपी। ओके, एपी का सीक्वेंस दिया हुआ है, विच टर्म ऑफ फॉलोइंग एपी इज 560। मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, विच टर्म ऑफ फॉलोइंग एपी इज 560, मतलब वो कौन सी टर्म बन रही है, मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड आउट एन। ओके, विच टर्म ऑफ फॉलोइंग एपी इज 560, कौन सा सीक्वेंस, कौन सा एपी क्या दिया हुआ है, इट इज 2, 11, 20, 29। ओके, ये क्या दिया है, ये हमें दिया है सीक्वेंस। ओके ओके, 2, 11, 20, 19, ये क्या दिया है, एपी दिया हुआ है। ओके, सो विल राइट द सॉल्यूशन। ओके, सो हाउ विल राइट, विल राइट गिवन एपी इज, ओके, गिवन एपी क्या है, गिवन एपी इज व्हाट, इट इज 2, 11, 20, 19। ओके ओके, सो देयरफॉर यहाँ पे क्या है, a इज इक्वल टू 2 है। ओके, अदरवाइज यू राइट t1 इज इक्वल टू 2, ओके, t2 इज इक्वल टू 11, t3 इज इक्वल टू 20, ओके, t4 इज इक्वल टू 29। ओके, कॉमन डिफरेंस भी लिख सकते हैं। ओके, आई विल राइट t2 माइनस t1 इज व्हाट, इट इज 11 माइनस 2। ओके, 11 माइनस 2 इज 9। ओके, t3 minus 2 to t2, you will get 20 minus 11, which is 9. Okay, so you will get the constant thing. Okay, so therefore the common difference is what, difference is what, 9. Okay, तो अभी हमारे पास क्या क्या है, we have a, इसको t1 को a भी बोलते हैं, राइट ना, we have a common difference and this one. Okay, which term हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, therefore we write, we know, क्या पता है हमें a की फॉर्मूला पता है, tn इज इक्वल टू क्या होता है, दिस इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, सो हमें tn टर्म दी हुई है, दैट टर्म इज 560, a कितना है, a इज 2। ओके, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो n माइनस 1 इंटू डी, डी व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, इट इज 9। ओके, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बुक में इन्होंने ऐसे में मल्टीप्लाई किया 9n माइनस 9। ओके, मुझे तो ये अच्छा लगता है कि 560 माइनस 2। ओके, सो विच कम्स आउट टू बी 558, राइट, 558 इज इक्वल टू व्हाट, n माइनस 1 इंटू 9। ओके, तो 9 को क्या करूंगी मैं, यहाँ पे डिवाइड करूंगी, तो ये क्या हो जाएगा, 558 डिवाइडेड बाय 9, 9 6 जा 54, लेफ्ट विथ 1, राइट ना, सो 9 2 जा 18। ओके ओके, ये n चला गया ना अभी यहाँ पे। ओके, 62 इज इक्वल टू n माइनस 1। ओके, देखो मैंने क्या किया, 560 माइनस 2 किया, वो 558 आया। ओके, तो 558, तो एक टर्म फिर से लिख लेती हूँ, 560 माइनस 2 इज इक्वल टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 9, तो ये क्या आ जाएगा, 558 इज इक्वल टू क्या होगा, n माइनस 1 इंटू 9। ओके, देयरफॉर क्या होगा, 558 डिवाइडेड बाय n 9 सॉरी इज इक्वल टू n माइनस 1। ओके, बुक में हर टाइम पे उन्होंने n माइनस 9 दिया है। ओके, सो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, आप चाहे तो वैसे भी कर सकते हो, पर ये कैलकुलेशन कैसे फास्ट होनी चाहिए और विदाउट एनी मतलब जैसे भी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसलिए जो इजी रहे वो करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। ओके, सो ये क्या होगा, 62, ये 1 इस साइड आएगा, तो ये बन जाएगा प्लस 1 n। ओके, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n, n क्या आ जाएगा, 63। ओके, सो 560 जो आंसर ये है, तो वो कौन सी टर्म है, 63, मतलब 2, 11, 29 ऐसे ऐसे लिखते जाओगे तो वो 63 63 जो टर्म रहेगी, थर्ड बोलते हैं ना, 3 है तो 63 टर्म जो रहेगी वो कौन सी रहेगी, 560। या ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है था कि 63 टर्म कौन सी है, वो भी पूछ सकते थे, राइट ना। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम वी विल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्क चेक वेदर 501, okay, check whether 501 is in this sequence or not. Okay, next question is what, check whether 501 is in the sequence or not. Check whether 501 is in the sequence or not. कैसे सॉल्व करना है ये,
check whether 501 is in the sequence or not. Okay, sequence दिया हुआ है, it is what 5 11 okay 17 23. लिखने के टाइम पे ही फटाफट डी कैलकुलेट करते जाओ. क्या होगा डी इज इक्वल टू व्हाट, इफ यू वांट टू राइट यू राइट कंप्लीटली T1 T2, ये आपको फिर से लिखना है, मैं यही के लिख रही हूँ T3 T4. ओके, सो व्हाट विल बी द डी विल बी क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस, सो विच विल बी 11 माइनस 5 इज व्हाट 6. ओके, यहाँ पे भी क्या है 6 है. सो वी हैव ए इज इक्वल टू 5 एंड वी हैव ए डी इज इक्वल टू 6. ओके, तो हमें क्या है प्रॉब्लम में क्या करना है, चेक वेदर 501 इज इन द सीक्वेंस और नॉट. ओके, कैसे करना है मैंने आपको अभी बताया, कैसे फाइंड आउट करना है. हमें n फाइंड आउट करना है. 501 को Tn लेके वी नीड टू फाइंड आउट n. अगर n हमारा क्या है नेचुरल नंबर है तो 5 वो नंबर जो दिया है दैट विल बी इन द सीक्वेंस, अदरवाइज इट नॉट. ओके, आपको करना है, आप खुद होके भी कर सकते हैं, मैं करके दिखाती हूँ. Tn इज इक्वल टू ए के फॉर्मूला यूज करना है सिर्फ. ओके, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो यहाँ पे 501 आ जाएगा. a इज व्हाट, a इज इक्वल टू 5 है. n माइनस 1 n फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू d कितना है 6 है. ओके, सो 501 माइनस 5 कर सकते हैं. ओके, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 6 हो जाएगा. ओके, सो ये हो जाएगा 496. ओके, 496 n माइनस 1 इंटू 6, तो ये आ जाएगा 496 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू n माइनस 1. ओके, सो ये हो जाएगा 6 8 जा. ओके ओके, तो लेफ्ट विथ व्हाट, it is 6 8 जा 48. ओके, सो 1 लेफ्ट विथ 1, सो इट इज 6 2 जा 12. ओके, सो ये मतलब यहीं पे समझ रहा है कि ये क्या रहा है, नहीं आ रहा है, होल नंबर नहीं आ रहा है. 496 इज नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 6. ओके, सो अगर उसमें 1 भी ऐड करें तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 6 नहीं होगा. देयरफॉर n इज नॉट अ नेचुरल नंबर. n इज नॉट अ नेचुरल नंबर. ओके, n इज नॉट अ नेचुरल नंबर. या आप इतना भी करके छोड़ सकते हो, या इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट ना, ये 1 इस साइड आएगा. ओके, इज इक्वल टू n, चाहे तो ऐसे हो सकता है, क्या होगा 496 प्लस 6. ओके, 496 प्लस 6, सो ये कितना होगा, सो 502. ओके, 502 डिवाइड बाय 6 कितना होगा. ओके, साइड जस्ट अ मिनट. ओके, 6 ओके, सो ये आ रहा है क्या, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है. ओके, 6 8 जा 48. ओके, 6 8 जा 48. ओके, सो लेफ्ट विथ 2. ओके, फिर क्या हो रहा है 6 3 जा 18. ओके ओके, सो नॉट कम्प्लीटली नहीं, कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है. देयरफॉर व्हाट, n इज नॉट अ नेचुरल नंबर. ओके, n इज नॉट अ नेचुरल नंबर. n नेचुरल नंबर नहीं आया, देयरफॉर इट इज नॉट इन AP. इट इज नॉट इन AP और गिवन सीक्वेंस दिया है तो यू कैन राइट इट इज नॉट इन सीक्वेंस ऑल्सो. ओके, समझ में आया. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4. क्या है, हाउ मेनी okay, how many 2 digits numbers are divisible, how many 2 digit numbers are divisible by 4. Okay, so which is the first 2 digit number which is divisible by 4. देखो 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 10 11 12. ओके, और एंड कहाँ पे हो रहे हैं 99 पे. ओके, सो फर्स्ट डिजिट विच इज डिविजिबल बाय 4 कौन सा है, 12 है. ओके, और यहाँ पे 99 नहीं है, 98 नहीं है, देन 97 नहीं है, देन व्हाट 96 इज डिविजिबल बाय 4. ओके, राइट ना, 4 टू द वो, दिस इज द डिविजिबल बाय 4. ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट, हमें क्या करना है, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4. ये हमें मतलब जैसे 12 से 96 में, जैसे 12 16, ये क्या आएगा यहाँ पे 20 24. राइट, तो हमें फाइंड आउट करना है ऐसे कितने नंबर्स है जो डिविजिबल बाय 4 है.
तो ओके, सो आई विल राइट द फर्स्ट टर्म t1 इज व्हाट, सीक्वेंस लिख लेते हैं. ओके, 12, then 16, then 20, then 24, 28. ओके, ऐसे जाएगा. एंड लास्ट इज व्हाट, इट इज व्हाट, इट इज 96. कौन सा आएगा, लास्ट नंबर 96 आएगा. ओके, सो we'll write the first term what, a is the first term which is 12. Okay, so it is t1, this is t2, t3. Okay, what is the common difference, d is equal to what, t2 minus t1. Okay, so this is 16 minus 12, so it will be 4. Okay, so first term is what, 12, and the common difference is what, 4. So what formula we have to write, we write tn is equal to a plus n minus 1 into d. ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड आउट n. ओके, राइट, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स, मतलब हमें नंबर्स फाइंड आउट करने कितने हैं. तो और हमारे पास लास्ट टर्म है, व्हाट इज लास्ट टर्म, tn इज इक्वल टू 96. ओके, सो वी विल पुट ऑल द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला. तो ये क्या हो जाएगा, 96 इज इक्वल टू, a क्या है, a इज 12 प्लस n माइनस 1 इंटू d. d, व्हाट इज d हियर, d इज 4. ओके, सो ये क्या हो जाएगा, 96 माइनस 12 इज इक्वल टू 4 इंटू n माइनस 1. 96 माइनस 12 क्या हो रहा है, 96 माइनस 12, सो ओके, सो ये हो रहा है 84 इज इक्वल टू 4n माइनस 1. ओके, सो 84 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू n माइनस 1. ओके, सो इट इज 4 टू द 8, 4 1 द 4. ओके, n माइनस 1. ओके, सो 21 प्लस 1 इज इक्वल टू n. Okay, therefore n is equal to 22, right? So this is what, therefore what we'll write, therefore 22 2 digits numbers, 22 2 digit numbers, 22 2 digit numbers are divisible by 4. 22 2 digit numbers are divisible by 4, right? अब तक हमने इस पूरे लेक्चर में कौन सा फॉर्मूला यूज किया, सिर्फ ए के फॉर्मूला यूज किया, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ओके, एंड वी सॉल्व द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स डिपेंडिंग ऑन दिस फॉर्मूला, राइट. tn कैलकुलेट कर सकते हैं, a कैलकुलेट कर सकते हैं, n कैलकुलेट कर सकते हैं, d कैलकुलेट सकते हैं, एंड दे कैन आस्क वेदर दैट नंबर, सम टर्म विल बी गिवन, वेदर दैट टर्म इज इन द AP और नॉट. ओके, उसको कैसे फाइंड आउट करना है, इज इफ n इज अ नेचुरल नंबर, if n is natural number, that term will be in AP. If n is not a natural number, then not natural. Okay, then it is not a AP. Okay, so exercise we will continue in the next lecture.